Welcome all to the Snake Ria Foundation. Sorry for this delay. I'll quickly introduce. We have formed the Snake Ria Foundation in Nagpur. Next slide, please. Especially we have coming for the children with the various centers in Nagpur. These are all upcoming projects. Our idea is to provide all the conducive environment for the children to facilitate their overall development, like from the small child to the elder one. So we are create all the recreational communities, social rehabilitation center, vocational training and daycare center. Uh, Basic motto of SNCC is to educate the parent and develop their perspective towards the right kind of interventions and treatments. That's why we are coming up with this webinar series. So you get the right kind of treatment and perspective. I mean, it is very important to have a right perspective so we can develop our child better. Now today's today's webinar series is we are doing in collaboration with CRC, and I'll hand over this to Dr. Sumit Shinde, a well-known pediatric occupational therapist from Mumbai. Sir, you can take this further. Right. Yes. Good evening, everyone. I am Dr. Sumit Shinde, a pediatric occupational therapist, and last 14 years, after seeing around 4,000 kids with various developmental disabilities, leading a biggest team in all over Maharashtra, sitting in front of you to discuss a very, very important topic, that is how unresolved ADHD, like अगर कोई ADHD का बच्चा है, जब उसमें अगर उसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो, या अगर if the things are not sorted out in early stages, then how those particular things affects his overall personality, and that creates the irreversible actions in the child's personality development. So it's a very, very important lecture कि अगर मेरे बच्चे की ट्रीटमेंट अगर ठीक से नहीं होती हो, तो फिर मैं आगे जाके क्या फेस कर सकती हूँ as a parent, or as a person, what personality we can see in our child. It's not this lecture is not एक पूछना चाहूंगा, you want me to take this lecture in English or in Hindi or Marathi? Please tell me, madam. You are the host. I mean both. English, sir. Yeah, English better. Because this is more of a Indian people have enrolled, so I will take it in. जहाँ पर English की जरूरत हो वहाँ पर English use करेंगे. I am a Maharashtrian, so I'll use Marathi also, and then let's use more of a Mumbai-based language. So अगर ADHD exactly क्या है, उसका perspective क्या होना चाहिए, और मैं हर एक लेक्चर, हर एक वेबिनार में मैं एक बात बोलता हूँ कि प्रॉब्लम अगर सामने आता है तो उसके स्ट्रेट अवे उसके सॉल्यूशन की तरफ ना दौड़कर, हमने उस प्रॉब्लम को अगर सही सवाल अगर पूछेंगे, हम लोग पूछेंगे, तो फिर वो प्रॉब्लम ही हमें राइट सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाता हूं. तो हमें दूसरों के पास सॉल्यूशंस मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है. आई रिपीट, कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे सामने आता है, तो rather than falling into the solutions, okay, and searching for the solutions, we should take a pause, we should take and we should ask few right questions to that problem. Then what happens? The problem itself starts giving us answers in terms of opportunities and in terms of resolving that problem. And in terms of child development, ये जो मैंने अभी जो बोला है वो बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि the best therapist, the best doctor, the best person who's going to develop the child is the parent himself. Okay, so I am
being a professional, being an experienced person in this field since last 14 years, जब मैं 14 साल पहले जिस बच्चे को मैंने 8 साल का था, 4 साल का था, 5 साल का था, वो बच्चे अभी 22 साल, 24 साल, 25 साल के हैं। तो when I see those kids, उन बच्चों को अगर मैं अभी देखता हूं तो I try to understand if they are successful, then why they are successful. If they are facing some challenges, then why those kids are facing challenges. If those kids are doing very good, then what are the aspects we could develop in them because of which they are doing very good. And if they are not doing good, then what are the aspects that they missed out in the early stages of development, or we could not develop, or the parent could not develop, because of which they are facing challenges in the adulthood now. So let's begin with a lecture of how unresolved ADHD affects the child's personality. So to begin with, what is ADHD? ADHD is a common most neurological developmental disorder that is seen in 6% children who shows following traits. First is a lack of attention span, distractibility, एक जगह पर ध्यान नहीं देता है, concentrate नहीं करता है, बार बार activities change करता है। ये बहुत सारे symptoms हैं lack of attention span के। मैं ज्यादा इसमें नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप सबको ADHD क्या है ये पता है, मैं ऐसे ही मान के चलूंगा। दूसरा है हाइपर एक्टिविटी, चाइल्ड एक जगह पर नहीं बैठता है, चाइल्ड अति चंचल होता है, चाइल्ड बहुत बार एक्सीडेंटल बिहेवियर दिखाता है, एग्रेशंस दिखाता है, चाइल्ड थ्रोज द थिंग्स, डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी कम्स इनटू द हाइपर एक्टिविटी, एंड इम्पल्सिविटी इज समथिंग लाइक डूइंग थिंग्स without thinking about it, और impulsive lack of patience जिसको बोला जाता है, तो ये है impulsivity. So ADHD is a neurological disorder है, ये एक developmental disorder है, ये academic disorder नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि अगर मेरा बच्चा academic में अच्छा करने लगा तो ADHD ठीक हो गया. That's the myth, and that's why ADHD is not curable. And that's why I feel I felt personally this lecture is very important for all those parents who are facing or dealing with ADHD at home. So poor attention span, hyperactivity and impulsivity, these are the 3 symptoms. ये 3 symptoms के ऊपर ADHD के अलग अलग प्रकार होते हैं. First of all, पहला प्रकार है, first thing is अटेंशन डेफिसिट टाइप ऑफ ADHD, जिसको हम लोग ADD कहेंगे. दूसरा हाइपर एक्टिविटी टाइप ऑफ ADHD, और तीसरा है इम्पल्सिविटी टाइप ऑफ ADHD. जस्ट अ मोमेंट. Just a moment. This is the problem with the work from home. Sorry for the disturbance. Okay. So these are the 3 traits. So पहला ADHD का प्रकार है lack of attention type of ADHD. दूसरा प्रकार है lack of or presence of hyperactivity predominant ADHD. और तीसरा है impulsivity predominant ADHD. और चौथा है mixed. All 3 things can be seen together in a child. So this is about ADHD. Common complaints हम लोग ADHD में हमारे पास जब आते हैं बच्चों के, तो वो है चाइल्ड एक जगह पर बैठता नहीं है, लैक ऑफ अटेंशन होता है, कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं करता है, फॉरगेटफुलनेस, कल जो सिखाया था वो आज भूल जाता है, डी लर्निंग का रेशो लर्निंग के रेशो से ज्यादा होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, बहुत अपनी चीजें भूल जाता है, अपनी चीजें अस्त व्यस्त रखता है, अपने टाइम शेड्यूल के अनुसार नहीं चलता, या बहुत सारी चीजें अपने डेली लिविंग टास्क में वो बहुत बार डिसऑर्गेनाइज्ड रहता है. Repeated complaints from the school about study and behaviors. स्कूल में जब बैठा है तो कॉपी नहीं करता है, या कंप्लीट नहीं होते बुक्स, या मिस्चीवियसनेस बिहेवियर दिखाता है, एक जगह पर ध्यान नहीं देता है, दूसरे बच्चों का अटेंशन लेने की कोशिश करता है, हाइपर एक्टिविटी करता है, अपने सीट पर नहीं बैठता है,
बिना सोचे अपना हाथ ऊपर करता है और आंसर देने की कोशिश करता है जहां पर वो पूरा सवाल ठीक से समझ भी नहीं पाता है। तो ऐसे बहुत सारी जब कंप्लेंट्स स्कूल से आते हैं। देन डिस्ट्रक्टिव और ओवर एक्सप्लोरेटिव, बच्चा खिलौना जब देता है तो वो खिलौने को तोड़ने की कोशिश करता है। ओवर एक्सप्लोरेटिव यानी कि कहीं पर चढ़ के भी वहां पर क्या रखा है वो डेंजरसली देखने की कोशिश करता है, ओवर एडवेंचरस होता है। देन फियरलेस एटीट्यूड होता है, वो रोड पे बिना सोचे समझे भागता है, या उसको एक जो फियर और सॉरी डेंजर और सेफ्टी का जो एक अवेयरनेस होना चाहिए वो अवेयरनेस बच्चों में नहीं होता है। एंड एक्ट विदाउट थिंकिंग, दैट इज कॉल्ड एज इम्पल्सिविटी और लैक ऑफ पेशेंस, वो रुकता नहीं है। दो लोग अगर बात करें तो उनके बीच में ही आके इंट्रूड करता है, या बहुत बार काम में बीच में ही आकर डिफिकल्टी क्रिएट करता है। तो दिस आर ऑल बेसिक कंप्लेंट्स व्हिच कम्स टू अस विद रिस्पेक्ट टू ADHD एंड मैनी मोर। सो ये सारे एक्सपेक्टेशंस, ये सारे कंप्लेंट्स में पेरेंट्स के बेसिक एक्सपेक्टेशंस ये होते हैं कि उसने स्कूल में बैठना चाहिए, उसने पढ़ाई करना चाहिए, उसने लर्निंग एकेडमिक स्किल्स डेवलप करने चाहिए, उसका राइटिंग कंप्लीट होना चाहिए, उसके बुक्स कंप्लीट होना चाहिए, उसके मार्क्स बढ़ने चाहिए। देन सोशल बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू, उसने लोगों के साथ कैसे बातें करनी है ये डेवलप करना चाहिए, या अगर कहीं पर भी किसी भी सोशल वेन्यू में जाता है तो वहां पर उसने बिहेवियर्स प्रॉपरली दिखाने चाहिए, या दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहिए, खेल के नियम समझने चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन होते हैं सोशल बिहेवियर्स को लेकर। और तीसरा है बिहेवियर्स को लेकर, दैट इज बच्चा बहुत ज्यादा टैंट्रम्स दिखाता है, बच्चा इमोशनल लेबिलिटी दिखाता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत थोड़ा सा भी डांटने पर जल्दी रोता है। ऐसे बिहेवियर्स पॉइंट ऑफ व्यू, स्टबर्न बिहेवियर्स, एग्रेसिव बिहेवियर्स, टैंट्रम्स को लेकर पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस हमसे होते हैं। एक एज पर थेरेपी, आई मीन एज पर पैरेंटल एक्सपेक्टेशंस बहुत सारे थेरेपिस्ट काम करते हैं। तो जब वो काम करते हैं तब इज ऑलवेज सीन कि व्हाट अदर पर्सन वांट्स दैट वी हैव टू वर्क अपॉन। So the trend is there like you have to work as per the parental expectations, then only the parent will sustain with you. I don't believe in that. I am a very much straightforward. So बहुत बार थेरेपिस्ट पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस के अनुसार काम करते हैं, और उनका ज्यादा से ज्यादा एक जो नजरिया होता है वो इन चीजों पर होता है कि सिलेक्टिव अटेंशन पर कैसे काम करे, कि बच्चे का सिलेक्टिव अटेंशन वहीं पर वो बोर्ड की तरफ देखता रहे या बुक की तरफ देखता रहे या अपनी एक्टिविटी पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। लेकिन बहुत बार लोगों को ये नहीं पता कि सिलेक्टिव अटेंशन ये सिर्फ एक तरीके का अटेंशन नहीं है। अलग अलग टाइप से अटेंशंस होते हैं, सेंसरी बेस्ड अटेंशंस अलग होते हैं, और अटेंशन के क्लासिफिकेशंस अलग होते हैं। उसमें से पहला क्लासिफिकेशन है सिलेक्टिव अटेंशन। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं इसका मतलब मैं किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन जब हम लोग फंक्शंस में काम करते हैं तब मैं अगर कोई हीरे का कोई हीरा बना रहा हो या हीरे को तलाश रहा हो तो उसका सिलेक्टिव अटेंशन काफी ज्यादा मायने रखता है, दैट इज अ सिलेक्टिव अटेंशन। अगर कोई कारपेंट्री या अगर कोई एक कारपेंटर है और वो किले के ऊपर नेलिंग कर रहा है हैमर के साथ, तो वहां पर सिलेक्टिव अटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज अबाउट सिलेक्टिव अटेंशन। सेकेंड टाइप ऑफ अटेंशन इज डिवाइडेड अटेंशन, जहां पर अगर मैं ड्राइविंग करता हूँ, ड्राइविंग जब मैं कर रहा हूं तो मेरा नजर वो गाड़ी के साथ भी होता है और उसी वक्त मेरी नजर वो साइड पे खड़े हुए इंसान पर भी होती है, बच्चे पर भी होती है कि शायद वो इंसान जाके रोड क्रॉस करना शुरू करे या ना करे, उसके अनुसार मैं ड्राइविंग करता हूं। तो मेरा नजर सिर्फ सिलेक्टिवली सामने वाले की गाड़ी पर नहीं होता है लेकिन आजू बाजू के लोगों पर भी होना चाहिए, उसको हम लोग डिवाइडेड अटेंशन कहेंगे। बहुत सारे गृहिणी है, बहुत सारे मम्मीज जब खाना बनाते हैं, आप खाना बनाते हो तभी बहुत बार आप दाल बना रहे हो और साइड बाय साइड आपका ध्यान ये भी होता है कि बाजू वाला का गैस बड़ा है छोटा है और वो गैस को आप कम कर देते हो। सो दिस इज कॉल्ड द डिवाइडेड अटेंशन। और उसी वक्त आप ये भी देखते हो कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड एज अ डिवाइडेड अटेंशन। एंड तीसरा अटेंशन है अल्टरनेटिव अटेंशन, की एक ही वक्त मैं दो अलग अलग काम कर रहा हूं जिसमें दोनों काम का एक दूसरे के साथ कुछ भी मेल नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी चला रहा हूं और मेरा काम है वहां पर ड्राइविंग, और एट द सेम टाइम आई एम टॉकिंग विद माय को कंसल्टेंट अबाउट अ चाइल्ड्स बिहेवियर। सो दैट इज अल्टरनेटिव अटेंशन।
सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटेंशन। लेकिन बहुत बार पेरेंटल एक्सपेक्टेशन ये होता है कि उसने एक ही जगह पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जब सिलेक्टिव अटेंशन डेवलप होता है और बाकी के दो अटेंशन जब डेवलप नहीं होते, then those two attentions are going to create lots of problem in the functional development as well as psychosocial development. दूसरा पेरेंटल एक्सपेक्टेशन होता है सिटिंग टॉलरेंस। सिटिंग टॉलरेंस यानी कि एक ही जगह पर बच्चे ने बैठना चाहिए और वो एक्टिविटी कंप्लीट करनी चाहिए। आई डोंट बिलीव इन दिस। बच्चे ने एक जगह पर बैठना चाहिए, इससे ज्यादा हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि बच्चे ने वो एक्टिविटी कितने अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए, चाहे वो भागते कूदते रहो या चाहे वो एक जगह पर बैठ के करो। मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स आर मोर कंसर्न विद द सिटिंग एटीट्यूड, उसने एक जगह पर बैठना ही चाहिए। एंड ध्यान एक्टिविटी पर ज्यादा नहीं होता, लेकिन बच्चे ने एक जगह पर बैठने पर होता है। बट बिलीव मी, उसके वजह से टू अचीव दिस मैनी पेरेंट्स fall into the trap of medicines, and then the medicines sedate the child and child sits in a sedated form, and then they somehow they achieve the sitting tolerance. So sitting tolerance is a very मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक बहुत ही गलत वर्ड है ADHD को लेकर। जब आप सिटिंग टॉलरेंस अचीव करते हो तब आप बहुत सारे टॉलरेंसेस मिस आउट करते हो, ये मैं बोलना चाहूंगा। तीसरी चीज है एकेडमिक कंप्लायंस। मोस्ट ऑफ द टाइम ADHD के जो लक्षण है ये स्कूल से आते हैं, तो हमें लगता है कि जब ये स्कूल में उसने अच्छा नहीं कर रहा है इसलिए ADHD है, इसलिए हम लोगों को ADHD पर काम करना है। उसके बाद ADHD पर जब वो थेरेपी करता है, बच्चा एक जगह पर बैठना शुरू करता है, बच्चा पढ़ाई में ध्यान देना शुरू करता है, एंड देन वी स्टॉप इट एंड बिकॉज वी फील द ADHD इज गॉन। क्योंकि हमारे मन में एक बिलीफ होता है कि ADHD सिर्फ एकेडमिक्स में ही बाधा लाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ADHD इज नॉट अ एकेडमिक प्रॉब्लम, ADHD इज अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। आगे का एक्सपेक्टेशन होता है कि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम होनी चाहिए, बच्चे के बिहेवियर्स कम होने चाहिए, वो एक जगह पर वो इधर उधर भागता है अननेसेसरी। लेकिन अगर बच्चे की हाइपर एक्टिविटी है तो उसमें हमें ये देखना होता है कि बच्चा एक्सप्लोर उसमें से कितना कर रहा है, या जहां पर एक्सप्लोर नहीं कर रहा है वहां पर हाइपर एक्टिविटी कम होनी चाहिए। लेकिन जहां पर बच्चा एक्सप्लोरेशन दिखा रहा है वहां पर उसको चैनलाइज करना है कि वो कितना अच्छे से वहां पर एक्सप्लोर करे और वहां से उसकी लर्निंग डेवलप हो। मैंने, अगर आप देखना चाहेंगे तो YouTube पर हाइपर एक्टिविटी, अलग अलग टाइप्स के हाइपर एक्टिविटी क्या होते हैं वो आप जरूर देख सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी, which are the different types of hyperactivity and how we can resolve those types. So this is लेकिन बहुत बार पेरेंट्स का एक बिलीफ होता है कि हाइपर एक्टिविटी को कम करना है। अगर उसेन बोल्ट की हाइपर एक्टिविटी अगर कम की होती तो शायद वो दुनिया का तेज रनर नहीं होता। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, बच्चा हाइपर एक्टिविटी में है या बच्चा लेकिन हाइपर एक्टिविटी में होकर अगर वो लर्न कर रहा है तो उसको हाइपर एक्टिविटी नहीं कहेंगे, हम लोग उसको ओवर एक्सप्लोरेशन कहेंगे। और इसका जो असेसमेंट है वो थेरेपिस्ट बहुत अच्छे से कर सकता है और थेरेपिस्ट ने करना ही चाहिए, रादर देन सीइंग लुकिंग एट child's movement. He should see how the child is actually wants to learn from the environment. Then comes command following. बच्चे ने मेरी सुननी चाहिए, बच्चे ने मेरे सारे कमांड्स फॉलो करने चाहिए। यहाँ पर मैं कहूंगा कि बच्चा कमांड तो फॉलो करने लगता है थेरेपी के बाद, लेकिन हमें ये देखना है कि कमांड फॉलो करने के लिए जो भी एक रिसेप्टिव कम्युनिकेशन बच्चे में डेवलप होना चाहिए कि क्या वो डेवलप हो रहा है या नहीं, ताकि वो सिर्फ पेरेंट का कमांड सुनने वाला ना हो, लेकिन वो बाहर सोसाइटी में जहां पर भी जाता हो उनके सबके बिलीव्स, आइडियाज, थॉट्स जो है वो समझकर उनको फॉलो करे। नहीं तो बहुत बार हम लोग ये देखते हैं कि बच्चा सिर्फ पेरेंट्स की कमांड फॉलो करता है लेकिन बाहर जब जाता है तो नॉन कंप्लायंट बन जाता है, एंड देन दैट क्रिएट्स फर्दर चैलेंजेस इन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन आवर चिल्ड्रन। देन लास्ट इज अ सोशल बिहेवियर। यस, थेरेपी जब होती है तो वो 4 दीवारी में होती है, थेरेपी सेंटर में होती है या तो घर में पेरेंट फॉलो करता है। लेकिन थेरेपी का जो एक होम प्रोटोकॉल होता है या थेरेपी का जो एक
आउटकम होता है वो हमें जज करना होता है कि वो बच्चा चार दीवारी में नहीं लेकिन बाहर जाके जब वो सोसाइटी में रहता है, जब वो दूसरे लोगों के सामने रहता है, अपने पीयर ग्रुप में रहता है, तब वो कैसे फॉलो करता है वहां पर अपने अपने स्किल्स, अपनी एबिलिटीज या अपनी डेवलपमेंटल जो भी उसने डेवलप किया है वो चीजों को वो कैसे वहां पर फॉलो करता है। तो सोशल बिहेवियर इज समथिंग लाइक नॉट जस्ट रिलेटेड टू द फोर वॉल्स बट इट इज रिलेटेड टू द any environment, any given environment, how the child is behaving, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। So therapy definitely should happen as per the parental expectations rather than expectations. Therapy should happen as per the parenting challenges. At the same time, understanding the ADHD as a developmental disorder and where all the developmental aspects में वो ADHD बाद में जाके चाइल्ड को खतरा बन सकता है या चाइल्ड की पर्सनालिटी को इन्वेड कर सकता है, ये हमें देखना होता है। तो बहुत बार एक्सपेक्टेशंस थेरेपी को बहुत छोटा कर देते हैं और फिर बाद में जाके ये पर्सनालिटी को इशू करते हैं। तो आई डिस्कस्ड सिलेक्टिव अटेंशन इज नॉट द ओनली अटेंशन in our abilities. Second is a sitting tolerance is a wrong word. We should say activity compliance, whether the child is completing his activity or not. Academic compliance, reduced hyperactivity, yes, लेकिन hyperactivity में ये देखना जरूर होता है कि वो कितना exploration है और कितना hyperkinetic है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपको हाइपर एक्टिविटी के बारे में ज्यादा जानना है तो डेफिनेटली यू कैन सर्च फॉर द YouTube videos. Over there I have nicely explained what are the different types of hyperactivity and the reasons behind it. Command following and social behavior. So this is the parental expectations most of the time from the therapist, and we get this kind of things most of the time from parents कि नहीं वो तो छोड़ दो, वो बाहर कैसे बोलता है वो छोड़ दो, लेकिन अभी उसने ना वो ना क्लास में कॉपी कंप्लीट नहीं कर रहा है, वो ना क्लास में वो सारी चीजें नहीं कर रहा है, then automatically therapist attention moves from the development to the activity, and then the child sometimes become the activity master, but somehow he is not able to develop with respect to those social compliance as expected from a typically developing child. So this is about expectations, but there are certain unidentified these things which is unidentified elements that may cause ADHD as a lifelong disorder. ये unidentified elements मैंने आपको parental expectations में भी बताए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं कि this is something what you don't know which everybody is supposed to know. तो ये उसमें से सबसे पहला element है attention as a day-to-day element for learning from the experiences. You know, हम लोग attention develop करते हैं बच्चे को एक जगह पर बिठाकर और वो बैठकर वो बहुत सारे वो वेटेड कप्स और वो चीजें लगाकर अटेंशन तो बच्चे का डेवलप होता है, लेकिन क्या वो अटेंशन उसके बाकी के फंक्शंस में काम कर रहा है कि नहीं, क्या वो अटेंशन वो बेदिंग कर रहा है कि नहीं ठीक से, वो ठीक से खाना खाता है कि नहीं, वो ठीक से खेलने के वक्त वो ठीक से चार बच्चों की तरफ देखता है कि नहीं, तो वो सिलेक्टिवली बॉल को देखकर खेलता है कि नहीं, या डिवाइडेडली वो ये देखता है कि नहीं अभी वो बच्चा आ रहा है वो वहां पर फील्ड कर रहा है, या मैंने जाकर वहां पर फील्ड करना कि नहीं चाहिए, या शायद वो बच्चा रन ले रहा है तो मैंने कहां पर बॉल फेंकना चाहिए। दैट इज अ डिवाइडेड अटेंशन एंड अल्टरनेटिव अटेंशन की मेरे घर पे मेरा पढ़ाई भी है और यहाँ पर मुझे खेलना भी है, तो कितने बजे मुझे जाना है, तो वो भी उसके मन में रहना चाहिए और उसने खेलना भी चाहिए। तो दिस अटेंशन शुड नॉट बी डेवलप्ड ओनली फॉर द पजल्स and for certain activities where many parents comes to me and they say no, he has developed 30-minute attention. So 30-minute attention, and when I ask the parents कि क्या वो खाना खाता है तो भी कैसे खाता है, नहीं वो खाना खाते वक्त आधा घंटा 1 घंटा खाता रहता है, वहां पर इसका यहाँ वहाँ ध्यान होता है चलता है। So that means it's not called as a 30% or 30-minute attention. It is like you have trained the child to attend for that activity. So training attention cannot be trained. Attention should be explored from inside the child. So ये दो अलग अलग चीजें हैं। जहां पर बच्चों को ट्रेन किया जाता है वहां पर वो बच्चे सिर्फ उसी एक्टिविटी में मास्टर होते हैं, लेकिन फंक्शंस में मास्टर होना रह जाता है और फिर बाद में पर्सनालिटी में इश्यूज आते हैं। वो क्या हो सकते हैं वो प्रॉब्लम्स, वो हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे जरूर। दूसरा है अफेक्टेड ट्रांजैक्शन विद पियर्स, लो सेल्फ एस्टीम। बहुत बार बच्चा खेलते वक्त अटेंशन डेफिसिट बिहेवियर के वजह से, इंपल्सिविटी के वजह से बच्चा
वो गेम्स के रूल्स समझ नहीं पाता है या अपने एबिलिटी के हिसाब से वो खेल नहीं पाता है, और फिर बच्चे उसको अपने गेम से निकाल देते हैं। बच्चे उसको शायद 6 साल का है, 8 साल का है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ टिपिकल ADHD. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ADHD with autism over here. You know, the reasons over there are different, but I'm just talking about a pure ADHD child, जहां पर बच्चा अटेंशन ना देने की वजह से या उसकी अंदर की इम्पल्सिविटी की वजह से या हाइपर एक्टिविटी की वजह से बहुत बार वो जो एक ग्रुप गेम होता है उसमें कंप्लाई नहीं कर पाता है, और उसका जो पीयर ग्रुप होता है वो उसको अपने ग्रुप से निकाल देता है, एंड दैट कॉजेज द लो सेल्फ एस्टीम. बच्चा वो बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता है या वो बच्चे उसको नहीं समझ पाते हैं, और फिर बच्चा अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम कर देता है इन अ लॉन्ग रन. इसके ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी है. तीसरा है impulsivity affecting social skills. Impulsivity is something which is always not given enough attention in terms of ADHD treatment. ADHD treatment में सिर्फ 2 चीजें देखी जाती है, अटेंशन पे ऊपर काम करो, नहीं तो हाइपर एक्टिविटी पे काम करो. एक जगह पर बैठना चाहिए और उसने बैठकर वहां पर ध्यान भी देना चाहिए. लेकिन इम्पल्सिविटी, लैक ऑफ पेशेंस या डिमांडिंग बिहेवियर्स और डूइंग द थिंग्स विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस, ये जो चीजें होती हैं ये हमारे सोशल स्किल्स डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं, और उसके वजह से ही हमारी पर्सनालिटी में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं अगर इम्पल्सिविटी हमारे बिहेवियर्स में रहती है तो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इम्पल्सिविटी अफेक्ट सोशल स्किल्स. क्या होती है इम्पल्सिविटी? पापा इज ऑन फोन एंड देन चाइल्ड कम्स एंड पापा यू टॉक टू मी एंड देन पापा आस्क कि क्या हुआ, कि then child says a very silly thing which he could say after the telephone call, or the child demands for something, I want this particular thing, and he demands and he doesn't understand कि मैंने कितना उसमें ताकत लगानी चाहिए, और वो टैंट्रम दिखाता है और बहुत बार वो एग्रेसिव हो जाता है, and then parent has to listen to him, और या तो वो पेरेंट लिसन करता है उसको, नहीं तो वो शायद पनिशमेंट लेता है उसके वो बिहेवियर के लिए. सो इम्पल्सिविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट अफेक्ट्स द सोशल स्किल्स. और ये शायद अभी हम लोग बोलेंगे कि हाँ वो थोड़ा बच्चा है, लेकिन बाद में जब वो 4 लोगों के सामने रहता है, बड़ा हो जाता है, 15 साल से ज्यादा बड़ा होता है, फिर ये इम्पल्सिविटी उसके पर्सनालिटी को बहुत ही हार्म कर सकती है. और मैंने देखा है कि इम्पल्सिविटी पर पेरेंट्स ने ध्यान ना देने की वजह से बच्चों में गुनहगारी आती है या कंडक्ट बिहेवियर्स आते हैं. बच्चे, आई नो वन चाइल्ड was completely resolved from ADHD, but I told them, the parents, I was telling the parents in a long run that you have to work on the social skills, you have to work on the social behaviors. They said we will handle it, and the parents were more like a nurturing kind of a parents. They were providing all the demands what the child wanted, but a time aaya when they could not fulfill the child's demands. At that time child very badly harmed the father, and then father came to me, called me at night 11:30, and he said ki what you were saying was right, providing all the things and not understanding the impulsivity, डिजर्विंग नीड्स, नॉट डिजर्विंग नीड्स, जो भी आपने बोला था वो अगर मैं शायद करता तो आज मैं ये दिन नहीं देखता, बिकॉज नाउ माय चाइल्ड इज बिकम मोर पावरफुल देन मी एंड ही इज डिमांडिंग फॉर every time, and if I'm not able to provide it, then he hits me very badly. So this is something working on impulsivity. When the child is 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, we can nicely work on impulsivity, and then we can eradicate it completely for these things, and we can develop that patience in the child. We can develop that understanding of waiting, understanding of the consequences, appropriate reasoning, appropriate thoughts in the mind कि मैंने क्या करने से क्या हो सकता है. Then definitely this child can lead to a very normal and very appropriate and very successful social life in future. So let's not neglect impulsivity. Next is emotional development, और ये बहुत ही important है. इमोशंस मैं 3 जगह पर बांटता हूँ. सबसे पहले, क्या मुझे एहसास हो रहा है, क्या वो मैं अप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस कर पाता हूँ. दूसरा,
सामने वाले के इमोशंस को क्या मैं समझ सकता हूं कि सामने वाला रो रहा है, सामने वाला हंस रहा है, सामने वाला हैप्पी है, सामने वाला सैड है, सामने वाला गुस्से में है, सामने वाला गिल्टी है, सामने वाला जेलस फील कर रहा है, तो क्या वो सारे एक्सप्रेशंस में समझता हूं। और तीसरा कि सामने वाले के एक्सप्रेशंस या इमोशंस के अनुसार क्या मैं अपने इमोशंस बदल सकता हूं या नहीं। So these are the three elements of emotions. Okay, expressing self emotions, understanding another person's emotions, और तीसरा following or reciprocating to those emotions in a more appropriate manner. तो ये तीन चीजें हैं जो हम लोग बहुत ही बचपन में ही बच्चों के साथ अगर वर्कआउट करते हैं, then that child will become socially sensitive child. He will understand others' needs properly, and बहुत बार ADHD बच्चों में ये देखा जाता है कि they are more selfish. They try to figure out their things more than the others' needs. तो ये अगर हम लोग रोकना चाहते हैं तो डेफिनेटली इमोशनल डेवलपमेंट हमें बहुत ही उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी होता है while treating the child. And next is higher function invasion. इसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको स्क्रीन शेयर करके ही बताऊंगा कि एग्जैक्टली हायर फंक्शंस क्या होते हैं। इम्पल्सिविटी कन्वर्टिंग इनटू एग्रेशन। इम्पल्सिविटी यानी कि उसको रोकना नहीं है, उसको वो बिना सोचे कुछ भी कर जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि few people are having a trait कि बिना सोचे वो कुछ भी फेंक देते हैं, कुछ भी मारते हैं, and then एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और फिर वो हाथ सर पे रखते हैं कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। So that is a trait of impulsivity, you know, and this is purely seen in unresolved ADHD people कि बिना सोचे जब वो करते हैं तब वो एग्रेसिव बन जाते हैं, और वो एग्रेशन एक उनका पर्सनालिटी ट्रेट बनता है, और वो एग्रेशन को बाद में रिजॉल्व करना सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे के हाथ में होता है, वो इंसान के हाथ में होता है, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट ऑलरेडी वीक हो चुका होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिजॉल्व द इम्पल्सिविटी इन अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ so that it will not get converted into aggression. Next is early saturation. Early saturation in activities, boredom in a work. डॉक्टर सुमित वो ना अभी ना वो उसको फुटबॉल में डाला, 4 दिन गया, अभी वो बोलता है कि मुझे पियानो सीखना है। ठीक है, मैंने पियानो में डाला, फिर अभी वो 2 दिन गया, 2 दिन के बाद वो बोलता है कि मुझे अभी तबला सीखना है। तबला में वो 10 दिन गया, 10 दिन के बाद अभी वो बोलता है कि मुझे स्विमिंग जाना है। तो द चाइल्ड डेवलप्स द बोर्डम वेरी फास्ट। सो ये बोर्डम बाद में भी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है। आपने देखा होगा बहुत, there are many people who frequently leave their jobs, frequently leave their assignments, and they are not bothered about completing those assignments. So ये जो चीजें होती हैं ये बचपन में इस तरीके से दिखाई देती है बच्चों में, so that you know it's a combination of lack of attention and we can say the hyperactivity where the child is getting boredom in a very easily in day-to-day work. And last and very, very important and neglected aspect is intelligence acting as a culprit. मैं फिर से बोलता हूँ, intelligence acting as a culprit. Intelligence, जो बच्चे का इंटेलिजेंस होता है या जो इंसान का इंटेलिजेंस होता है, वो उसको मदद करता है कि वो कितना फास्ट बाहर से आने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके अच्छे से उसके बारे में एडाप्टिव रिस्पॉन्सेस क्रिएट करे। तो जितना ज्यादा आईक्यू है उतना अच्छे से वो बहुत सारे चैलेंजेस को एक साथ निपटा सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंस मुझे एक अच्छा इंसान बनाता है। मैं रिपीट करता हूं कि इंटेलिजेंस मुझे मदद करता है बाहर से आने वाली इंफॉर्मेशन, चैलेंजेस को मैं कितना फास्ट उसको अंडरस्टैंड करके उसको प्रोसेस करके मैं उनके सॉल्यूशंस पे ऊपर काम करता हूं। तो कुछ लोगों का इंटेलिजेंस काफी अच्छा होता है, तो एट अ टाइम the child is doing maths also, he can do the physics also, he knows how to play the cricket also, he knows, बहुत सारी चीजों में वो अच्छे होते हैं बच्चे। लेकिन ओके, चीजों में अच्छा होना और एक अच्छा व्यक्ति होना, इसमें फर्क है। तो इंटेलिजेंस जब ADHD में ज्यादा होता है, that sometimes the child's ADHD is on a moderate to moderate level, but still and child's intelligence levels are more than 100, sometimes they are 120, then these children may show more impulsivity because they at the same time their intelligence will ask for more and more attention.
हर एक इंटेलिजेंस इंसान की एक प्रवृत्ति होती है कि वो इंटेलिजेंस होने का वो एहसास दिखाने के लिए वो बहुत ज्यादा अटेंशन लेने की कोशिश करता है। तो आपने देखा होगा आपके शायद there are few parents who may get complaint from the school that he tries to seek other people's attention, he tries to seek that dominance in on other children. So believe me, this is a symptom that your child is more intelligent than those children. But most of the time what happens when our child, because of the ADHD traits, when he's not able to achieve the assignment, when he's not able to complete the activity or whatever the task is given, and he doesn't get success, then what happens, its own intelligence starts affecting his own emotions, and शायद एक कम IQ वाला बच्चा बहुत ही स्लोली लो कॉन्फिडेंट बन जाए, लेकिन हाई IQ वाला बच्चा बहुत ही जल्दी वो एक्टिविटी को डॉज करना लगता है। वो इंटेलिजेंटली वो चीजें जो उसके सामने आती है, जो उसको चैलेंजिंग लगती है, उनको वो बहुत अच्छे से वर्बली उसको डॉज करता है, उसको नहीं करने की कोशिश करता है। और ऐसे बच्चे बहुत बार आगे जाकर they do nothing, they actually do nothing, and they nicely give answers to parents, answers to teachers for not doing the tasks. आपके सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे। that child has stopped studying, child has stopped this thing and he gives the challenges कि जाओ नहीं करता हूं मैं, जो भी आप करो, लेकिन उसके अंदर एक लो सेल्फ एस्टीम होता है और वो इंटेलिजेंटली वो लो सेल्फ एस्टीम को मास्क करता है, उसको टैकल करता है और वो ऐसे दिखाता है कि आई एम आउट ऑफ इट। तो इंटेलिजेंस एक्ट्स एज अ कल्प्रिट। एक और चीज बोलना चाहूंगा, दो इंसान थे इस पिछले सदी में, गांधी जी और हिटलर, दोनों का भी इंटेलिजेंस सेम था, लेकिन एक ने कंस्ट्रक्टिवली यूज किया और दूसरे ने डिस्ट्रक्टिवली यूज किया। तो इंटेलिजेंस अच्छा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो इंटेलिजेंस आप कैसे अपने पेशेंस रख के, अपने अंडरस्टैंड करके, सोशल स्किल्स करके कैसे आप सोसाइटी के लिए यूज करते हो, खुद के सक्सेस के लिए यूज करते हो, वो ज्यादा मायने रखता है। लेकिन वो जब आपको सक्सेस नहीं मिलता है, व्हेन द सोसाइटी डोंट accept you, then the same intelligence becomes a stress for you and it increases the emotional disturbances inside you. आपने देखा होगा there are many people who are more intelligent but they give up very fast because they were intelligent. That's why they give up very early. So these are the unidentified elements that cause ADHD as a lifelong disorder. अगर आपको ये चीजें अभी पता चली है तो talk to your therapist and definitely start working on them, apart from what we are giving 90% attention to the academic elements during ADHD. Next is just a moment, I am slightly bring it down. Okay. So हायर फंक्शंस कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं ADHD को? हायर फंक्शंस, अगर हायर फंक्शंस क्या होता है, अगर वो आपको बहुत अच्छी तरह से जानना है तो यू कैन सी वन ऑफ माय बेस्ट वीडियो। एक से 1.5 घंटे का वो एक लेक्चर है अबाउट पेरेंटिंग इन डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, जिसमें हायर फंक्शंस क्या होते हैं बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया है। आई विल जस्ट टेक फ्यू मोमेंट्स टू मेक यू अंडरस्टैंड। इंफॉर्मेशन आती है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है, एक कंट्रोल, मेरी ब्रेन अपने बॉडी को कंट्रोल भेजता है और एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। ये एक्सपीरियंस ब्रेन अपने मेमोरी में स्टोर करता है ताकि अगले टाइम अगर सेम इंफॉर्मेशन आए तो इस वक्त मैं अच्छी तरह से वो इंफॉर्मेशन को टैकल करूं, यू नो। तो ये है सेंसरी इनपुट, then behavior, and then behavior further develops your higher functions. ये ऐसे हायर फंक्शन कौन से हैं? सबसे पहला है मेमोरी, जो स्टोर करता है मुझे मिले हुए अच्छे एक्सपीरियंस, मुझे मिले बुरे एक्सपीरियंस, ताकि उन एक्सपीरियंस में से अगली टाइम मैं बहुत अच्छे से टैकल करके, मैं लर्न करके वो चैलेंजेस को के मैं ऊपर चला जाऊं। सो that is the major फंक्शन ऑफ द मेमोरी एरिया। मेमोरी एरिया का फंक्शन है अपने एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करके आगे चले जाना, ना कि पाइथागोरस, न्यूटन, ABCD 1 2 3 4 याद रखना, ओके, ना तो स्पेलिंग याद रखना। अगर आपने उसके ऊपर काम किया है तो बच्चा आपका अपने एक्सपीरियंसेस से आगे नहीं सीखेगा या सीखने की एबिलिटी कम हो जाएगी।
So which are the different types of हायर फंक्शंस? पहला है मेमोरी, दूसरा है स्पीच, यानी कि मेरा वोकलाइजेशन, मैं बोल रहा हूं, ओके, मैं आवाज करता हूं, दैट्स अ वोकलाइजेशन, दैट इज ओनली द स्पीच। तीसरा है लैंग्वेज, जो वर्ड्स आते हैं बाहर से, जो साउंड्स फॉर्म में आते हैं, उनको मेरा ब्रेन कैसे वर्ड में कन्वर्ट करता है, और वो जो वर्ड होता है उसके बारे में मैं कैसे एक विजुअल क्रिएट करता हूं, उसको कहेंगे हम लोग रिसेप्टिव लैंग्वेज। एंड दूसरा है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, की जो मेरे मन में जो चित्र है, जो मेरे मन में जो एक जो इमेजिनेशन है, वो मैं वर्ड के माध्यम से कैसे बोल पाता हूं, ओके, दैट इज द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। और तीसरा है कम्युनिकेशन, ओके, जो एक हायर फंक्शन है जिसमें मैं अपने आइडियाज, बिलीव्स, मैं अपने थॉट्स सामने वाले को वर्बली या नॉन वर्बली कैसे पहुंचाता हूं, ताकि सामने वाला मेरे इंटेंशंस को जानकर, या सेम इंटेंशन से मैं कैसे ट्रांसफर करता हूं ताकि सामने वाला वो इंटेंशन को जानकर वैसे वैसे कम्युनिकेट करे, तो इसको कहेंगे कम्युनिकेशन, ओके। उसके बाद का हायर फंक्शन है ओरिएंटेशन, आने आजू बाजू में क्या हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू विजुअल, विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिटरी सेंस, विथ रिस्पेक्ट टू टच, विथ रिस्पेक्ट टू स्मेल एंड डेफिनेटली टेस्ट, बट टेस्ट इज अ वेरी लोकलाइज्ड थिंग। लेकिन मेरे आजू बाजू में क्या है, मैं कहां पर हूं, ये मेरे सेंसेस मुझे बताते हैं, ताकि मैं ओरिएंट होता हूं वो एनवायरमेंट को लेकर, दैट इज ओरिएंटेशन। नेक्स्ट इज थिंकिंग, मैं क्या सोचता हूं, और मैं कितना एक ही लाइन में सोचता हूं, या मैं बहुत सारी चीजें एक साथ सोचता हूं। उसके बाद होता है इमेजिनेशन, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, हमारी कल्पना शक्ति। उसके बाद है इमोशंस, ये भी आपको पता है कि इमोशंस क्या होते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएटिव थिंकिंग, कि अगर मेरे सामने कुछ रखा है तो उससे मैं क्या ऐसी चीज बनाऊं जिससे मुझे फायदा हो या सामने वाले को फायदा हो, दैट इज अ क्रिएटिव थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग, अगर मैं रोड क्रॉस करता हूं तो ये एनालाइज करना कि मैं पहले भागूं या पहले गाड़ी जाएगी। उसके बाद होती है लॉजिकल थिंकिंग, कि मैं पहले क्या करूं, या हाउ आई विल प्रायोरिटाइज माय वर्क सो दैट माय एनर्जी आई हैव टू स्पेंड लेस, दैट इज अ लॉजिकल थिंकिंग। एंड लास्ट इज रीजनिंग, कि कोई भी चीज होती है तो क्यों होती है, कैसे होती है, ये सारी चीजें समझना। सो दिस इज कॉल्ड एज अ हायर फंक्शंस। और लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है मूवमेंट एंड मोटर कंट्रोल। तो हायर फंक्शंस में जब हम लोग बात करते हैं, तो आई रिपीट इट वेरी फास्ट, इज अ मेमोरी, स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, ओरिएंटेशन, थिंकिंग, इमेजिनेशन, इमोशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग एंड मूवमेंट्स। सो ये है हायर फंक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हायर फंक्शंस जब डेवलप होते हैं एडीएचडी में, या हायर फंक्शंस कैसे डेवलप होते हैं, तो ये 10 महीने से ही डेवलप होना शुरू होते हैं, ये पांचवें महीने से ही डेवलप होना शुरू होते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, सेंसरी एक्सपीरियंसेस के माध्यम से ये चीजें आती है। सो मल्टीपल सेंसरी इनपुट्स जब ब्रेन की तरफ आते हैं, तो ब्रेन उसको लेकर एक अडॉप्टिव रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। ताली बजाया तो बच्चा अगर स्टार्टल हो गया, तो उसको ये पता चला कि ताली का आवाज आने से मुझे रोना है, तो नेक्स्ट टाइम भी ताली बज गई तो वो डरना शुरू करता है, और ऐसे एक अडॉप्टिव रिस्पॉन्स बनता है। तो हमारे सारे बिहेवियर्स, हमारे सारे हैबिट्स, हमारे सारे थॉट्स एंड सारे हायर फंक्शंस, दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन हाउ हमने कैसे वो सेंसरी इनपुट्स अंदर लिए थे, और कैसे हमने वो सेंसरी इनपुट्स को लेकर हमारी लर्निंग क्रिएट की है, ताकि हम लोग सोसाइटी में खुद को प्रेजेंट कर पाए। एंड दैट इज अबाउट बिहेवियर। दैट्स हाउ हमारे ओरिएंटेशन, हमारे हायर फंक्शंस और हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। यहाँ पर I just stop the sharing, and I would like to show you some kind of explanation. If you permit me 10 to 15 minutes more from here. I'm just sharing the whiteboard. Can you see whiteboard? Host, can you see the whiteboard? Yes. 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 That's great. So यहाँ पर मैं कुछ चीज ड्रॉ करूंगा। अगर ये मेरा ब्रेन है, ओके, और ब्रेन को इंफॉर्मेशन आती है विजन, ऑडिटरी, टेस्ट, टच एंड स्मेल से, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर ऑडिटरी इंफॉर्मेशन बोलता हूँ, ऑडिटरी इंफॉर्मेशन हमारे कान से ब्रेन के प्रोसेसर की तरफ जाती है, ओके, और फिर ये फिल्टर होके, प्रोसेस होके हमारे हायर फंक्शंस को एक फीडबैक देती है, ओके। तो ये
ऑडिटरी इंफॉर्मेशन जब आती है तो मैंने एक वीडियो डाला था ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी पर, जहां पर ऑडिटरी प्रोसेसिंग कैसे होती है बहुत डिटेल में मैंने बताया है। यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। बहुत सारी आवाजें हमारे कान पर आती रहती है, हर वक्त आती है, और वो आवाजें हमारे प्रोसेसर ग्रास्प करता है बाहर से। वो बहुत सारी आवाजें एक साथ आती है, तो यहाँ पर ग्रास्प हो जाता है। उसमें से कुछ आवाजें ऊपर चली जाती हैं। I'll just erase this line and then I'll draw it. Okay, कुछ आवाजें हमारे हमारे हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, और वो इम्पोर्टेंस देते वक्त राइट नाउ यू ऑल आर लिसनिंग टू मी, आई अज्यूम दैट यू ऑल आर लिसनिंग टू मी। लेकिन अगर पीछे कुछ आवाज आती है तो, और वो शायद दूर से आवाज आ रही है लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन वो अगर आपको बीच में इंपॉर्टेंट लगी तो बहुत सारे लोग मुझे सुनना बंद कर देंगे और वो आवाज को आप ध्यान देना शुरू करेंगे। और वो है एक छोटी सी आवाज पीछे से आई तो आप मेरी आवाज को टर्न डाउन करेंगे, आप मेरी आवाज को लोअर डाउन करेंगे, और वो जो छोटी सी आवाज है वो अपने वो इंफॉर्मेशन ब्रेन आगे तक भेज देगा। कहां पर? ओरिएंटेशन, स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन एंड मेमोरी एरिया के पास। तो इसको हम लोग कहेंगे सेंसरी प्रोसेसिंग, सेंसरी मॉड्यूलेशन और सेंसरी अटेंशन। अगर कोई भी पर्सन मेरे पास आता है कि अटेंशन नहीं कर रहा है, तो अटेंशन इज अ वेरी सिंपल फॉर्म लाइक दिस। तो ऑडिटरी अटेंशन अलग होता है, विजुअल अटेंशन अलग होता है, टेस्ट अटेंशन अलग होता है। जब आप किसी कोई चीज लेते हो, जब आप टेस्ट करते हो, अगर आपको कोई आके बोलता है जरा इसको टेस्ट करना प्लीज, जब आप टेस्ट करते हो तब आप महसूस कीजिए कि बाहर से आने वाली सारी इंफॉर्मेशन को थोड़ी देर के लिए आप बंद कर देते हो। दैट इज कॉल्ड एज अ क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंसरी अटेंशन, सो लेट्स गो बैक टू द ऑडिटरी सेंस। तो बहुत सारे इनपुट्स आपकी तरफ आ रहे हैं, उसमें से कुछ इनपुट्स ही ऊपर चले जाते हैं और ये आपका सेंसरी अटेंशन बनता है। इन ADHD व्हाट हैपेंस, ये जो प्रोसेसर है ये प्रोसेसर अपना काम करना बंद करता है या बहुत कम तरीके से काम करता है, ताकि जो भी बाहर से आने वाली जो सारी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन एक साथ ओरिएंटेशन एरिया को भेज देता है। इसका मतलब अगर आपका बच्चा क्लासरूम में बैठा है तो बाहर से वो टीचर सिखा रही है A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, वहीं पर पीछे एक बच्चा रो रहा है, वहीं पर एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ बात कर रहा है, वहां पर एक क्रो आ गया, वो काव काव कर रहा है, बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं। तो बाकी के बच्चों के लिए ये सारी आवाजें इनको वो स्टॉप करके वो सिर्फ उसी आवाजों को आगे भेज देगा। ओके, तो ये नॉर्मल प्रक्रिया करेगा टिपिकली डेवलपिंग चाइल्ड। लेकिन अगर ADHD बच्चा है तो फिर वो क्या करेगा, वो प्रोसेसर ठीक से ना होने की वजह से जितनी सारी आवाजें आई हैं वो सारी आवाजें एक साथ ऑडिटरी रिसेप्टर को या लैंग्वेज एरिया के पास भेजेगा और ओरिएंटेशन एरिया को भेजेगा। तो वो हमारा जो बच्चा है वो क्रो की तरफ देखेगा, बीच में वो पीछे मुड़ के देखेगा, बीच में वो टीचर को देखेगा, बीच में बाहर मुड़ के देखेगा कि दरवाजे के बाहर क्या है। एंड दैट्स कॉल्ड एज अ डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। यस और नो, आई एम आस्किंग द क्वेश्चन टू एवरीवन, यस और नो। सो दैट्स कॉल्ड एज ऑडिटरी डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। वैसे ही विजुअल इनपुट्स जब होती है, बाहर से जो विजुअल इनपुट्स आते हैं, आई जस्ट अनडू दिस। तो अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू अंडरस्टैंड। जब विजुअल इनपुट जब बाहर से आती है तो वो भी बहुत सारे एक साथ आती है। जब मैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देख रहा हूं तब मुझे मेरे साइड पेरिफेरल विजन में बहुत सारी चीजें एक साथ दिख रही हैं, और लेकिन वो चीजों को मैं एक्टिवली डॉज करके मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, और वो हो रहा है बिकॉज ऑफ अप्रोप्रिएट सेंसरी प्रोसेसिंग और सेंसरी मॉड्यूलेशन की वजह से, विजुअल प्रोसेसिंग एंड विजुअल मॉड्यूलेशन की वजह से। इसीलिए मैं ऊपर जाके बहुत अच्छी तरह से मैं ओरिएंट हो रहा हूं कि इस कंप्यूटर के लैपटॉप की स्क्रीन पर क्या चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन कुछ बच्चे जब वो टीचर सिखा रही है तो वो विजुअली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, किसने पीछे मुड़ के देखा, या किसने बैग ओपन किया, या कौन बच्चा उठ के खड़ा हो गया, या कौन बच्चा बाहर से भाग रहा है। तो उसके विजन में बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाएगी और वो सारी चीजों को आगे एक साथ लेके जाएगा, राइट। दैट्स कॉल्ड द विजुअल डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। और आपकी तरफ जब कंप्लेंट आती है टीचर से तो टीचर सिर्फ इतना ही बोलती है, इसका ना एक जगह पर ध्यान ही नहीं होता, ये मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता, इसका ध्यान हर जगह पर होता है।
नाउ आई एम कमिंग टू द हायर फंक्शन। जब ये सारी चीजें होती हैं तब एक हायर फंक्शन डेवलप होता है जो है ओरिएंटेशन। ओके, ओरिएंटेशन ये जो हायर फंक्शन है, इसके पास किसी एक सिलेक्टिव सेंसर इनपुट ना आकर अगर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, सॉरी वेयर आई गॉन, let me share it again. Yes, yeah, I'll stop share, I'll do it again. Yeah, can you see this? Can you see the board, Sushant? Yes, yes. That's great. तो जब टिपिकली डेवलपिंग बच्चों के लिए सिर्फ एक ही इनपुट होता है और वो ओरिएंटेशन उसका एक ही जगह पर ध्यान होता है, लेकिन एडीएचडी बच्चा को अगर ये पूछा जाए कि टीचर ने क्या सिखाया बताओ, तो वो ये नहीं बता पाएगा, लेकिन वो ये जरूर बता पाएगा कि कौन किसके साथ बात कर रहा था, वो जो क्रो आया था वो सेम कल के जैसा ही क्रो था क्या, या किसने अपनी बुक नीचे डाली, या कौन बच्चा बाहर से भागा। ये सारी बच्चों के वो ये सारी चीजों के वो आंसर्स दे पाएगा। इसको हम लोग कहेंगे डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बेस्ड ओरिएंटेशन। लेकिन ये ओरिएंटेशन में किसी एक जगह पर ध्यान ना देने की पर्सनालिटी वो डेवलप कर रहा है। यस और नो? ओके, यहां पर बच्चा अगर एक जगह पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो बहुत सारी चीजों पर एक साथ ध्यान देने की कोशिश कर रहा है, और उसका जो हायर फंक्शन है, जो ओरिएंटेशन है, वो बहुत सारा डेटा एक साथ गैदर करेगा, और वो ओरिएंटेशन को लेकर जब उसको सोचना है, जब उसके इमोशनल डेवलपमेंट है, उसकी थिंकिंग है, उसके रीजनिंग है, उसका लैंग्वेज है, उसका कम्युनिकेशन है, ये सारी चीजों का अननेसेसरी डेटा भर जाएगा, और वो सारा जो हायर फंक्शन है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। I hope you understood this. Because of this attention deficit and because of this sensory lack of information or lack of processing, ये जो सारे हायर फंक्शंस हैं, ये हायर फंक्शंस अफेक्ट हो जाएंगे, डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, जिसके वजह से उनकी जो फंक्शनिंग एक लीनियर वे से होनी चाहिए, अपने चैलेंजेस को लेकर होनी चाहिए, अपने असाइनमेंट को लेकर होनी चाहिए। लेकिन बच्चा एक जगह पर ध्यान नहीं देता, बच्चा बहुत सारी चीजों पर एक साथ ध्यान देना शुरू करता है, और बाद में ये प्रॉब्लम, आई एम जस्ट स्टॉपिंग दिस, सो लेट्स मूव टू द stop share, sorry, I'll just move this. Achha, हाँ, can you see the PPT now? Sushant, can you see the PPT? No. Achha, okay, I'll just stop sharing and I'll start sharing again. Yes. I'm not that great in technology, so this is called as higher function will get affected, you know. और ये जब हायर फंक्शन अफेक्ट हो जाता है तो बच्चे का इमोशन एक ही टाइम पे वो हंस रहा है तो दूसरे टाइम पे वो जो हंस रहा था उसका रीजन उसको पता नहीं चलेगा, और वो शायद अगर रो रहा है तो बीच में ही वो हंसना शुरू करेगा। बहुत सारे इमोशनल लेबिलिटी डेवलप होगी, मल्टीपल इमोशंस एक साथ आ जाएंगे, और वो अपने एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस के जरिए नहीं पेश कर पाएगा, और वही प्रॉब्लम होगा उसको सोसाइटी में, और बाद में जाकर वो अप्रोप्रिएटली लोगों के इमोशंस को नहीं समझ पाएगा, अपने इमोशंस ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, एंड देन डेफिनेटली लोग सिचुएशन के अनुसार, सिचुएशन है यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर एक किसी की डेथ हुई है और आई एम सपोज्ड टू शो द सिंपैथी, बट दिस पर्सन मे स्टार्ट लाफिंग अननोइंगली, यू नो, and this is called as not understanding or not able to express the emotions with respect to the situation, you know. So that is called as we can say the higher function is distorted, and that creates the major problems in the later stages of ADHD if not identified in early stages. Thoughts होते हैं तो अभी मम्मा पता है आपको क्या हुआ, आज ना वो सोहम ने ना मुझे बुक दिया था और उसमें लिखना था, तो उसमें मुझे कुछ चीजें कॉपी करनी थी, ये हो गया, और तभी बोला मम्मा शाम को पिज्जा खाने जाएंगे, मम्मा वो आपने बोला था ना परसों पिज्जा लेंगे, तो ऑल ऑफ अ सडन ही विल चेंज द टॉपिक,
he will not be able to stay on one topic, and because of that he will be showing a lots of thoughts together. बहुत सारे बच्चे अभी भी करते होंगे, जिनके भी बच्चे करते हैं, तो this is a time to work on their thought process, linear thought process, जिसको हम लोग कहेंगे coherent thought process. वो उसी टॉपिक पर रह के वो टॉपिक जब तक स्टॉप नहीं करता है तब तक उसने दूसरे टॉपिक को ओपन नहीं करना चाहिए. तो दैट्स कॉल्ड द कोहेरेंट थॉट प्रोसेस. लेकिन एडीएचडी में थॉट प्रोसेस डिस्टॉर्टेड होती है, मल्टीपल थॉट्स कम इन द माइंड, और जिस थॉट के ऊपर एक्चुअली काम करना था उसके ऊपर वो बच्चा नहीं कर पाता है, वो इंसान बाद में जाके नहीं कर पाता है. एंड दैट इज मोर डिफिकल्ट फेज देन द एकेडमिक डिसफंक्शन. लेट मी टेल यू. वैसे जैसे मैंने आपको इमोशंस के बारे में बताया, वैसे मैंने आपको थिंकिंग के बारे में बताया, वैसे इमेजिनेशन भी होता है कि मुझे किसी काम में इमेजिनेशन की जरूरत है, लेकिन मेरे मन में मुझे काम करना है बिल्डिंग का, लेकिन मेरे मन में आ जाएगा सुपरमैन, बीच में आ जाएगा कोई तो लायन ने टाइगर को खा लिया, और बहुत सारे थॉट्स आते रहेंगे, बहुत सारे इमेजिनेशन आते रहेंगे, बट द पर्सन विल नॉट बी वर्क एज पर हिज डेजिग्नेशन, एज पर हिज जॉब रिक्वायरमेंट्स. और बहुत सारे लोग अपने ही ख्यालों में रहते हैं, वो अपने ही ख्यालों में रहना, और जिसके वजह से उसके फंक्शंस लगातार कंटिन्यूअसली वो फंक्शंस ना कर पाना इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अनरिजॉल्व्ड एडीएचडी. सो देन कम्युनिकेशन लाइक वो पर्सन जब बात करता है तो since too many words are presented together, he will not be able to present self, he will not be able to put forward his points. उसको वो क्या कहना चाहता है वो ठीक से बोल नहीं पाएगा, या शायद लोग क्या सुनना चाहते हैं, या लोगों के एक्सपेक्टेशंस क्या है, या लोगों के एक्सप्रेशंस क्या है, वो नहीं समझ पाएगा, और वहां पर कम्युनिकेशन डेफिसिट हो सकता है in unresolved ADHD. In terms of memories, I explained you memory. He will show the forgetfulness, disorganized behavior. कल चीजें मैंने यहाँ पर रखी थी, मुझे याद नहीं है. And very important, he will not be able to learn from his repetitive failures. आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, उस इंसान को उसी चीज में 3 से 4 बार फेल्योर मिला है, लेकिन फिर भी वो वही गलती वापस करता है, क्योंकि उसमें अपने एक्सपीरियंसेस से सीखने की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं हुई है, और कॉन्सिक्वेंस होता है फॉरगेटफुलनेस एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर इन एडल्टहुड. सो हायर फंक्शंस इन्फ्लुएंस्ड बाय एडीएचडी आई जस्ट एक्सप्लेन यू. एंड अल्टीमेटली अगर मैं एक पर्सनालिटी हूं तो मैं पर्सनालिटी क्यों बना हूं? नॉट बिकॉज ऑफ माय फिजिक, नॉट बिकॉज ऑफ माय जस्ट माइंड, नॉट बिकॉज ऑफ माय नॉलेज, बट ओवरऑल हायर फंक्शंस व्हाट आई हैव डेवलप्ड ओवर द पीरियड. तो जब मैं किसी को मिलता हूं तब मेरे हायर फंक्शंस एक्सपोज होते हैं, और इसी को हम लोग पर्सनालिटी कहते हैं. तो ये पर्सनालिटी में इश्यूज क्या आएंगे, हाउ एडीएचडी अफेक्ट्स द पर्सनालिटी इन अ लॉन्ग रन, वी शुड नो दिस. चाइल्ड में बिकम पेसिमिस्टिक पर्सनालिटी, क्योंकि हर वक्त उसको रोका गया बचपन में, हर वक्त उसको उसकी गलतियां दिखाई गई. एवरी टाइम he got a failure, every time he got an overdue assistance के वजह से उसको पास किया गया, या उसको एक्टिविटी कंप्लीट करके दी गई. लेकिन जब वो बच्चा अपने आप वो चीजें करने की कोशिश करता है, लेकिन बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ असिस्टेंस एंड लॉट्स ऑफ mistakes being told to him, what happens that child may become pessimistic and he will say I don't know how to do, I don't want to do, and ये तो नहीं होगा और ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा. ये सारी चीजें पेसिमिस्टिक पर्सनालिटी में देखी जाएगी, और ऐसे आपने बहुत सारे लोगों को बाहर देखा भी होगा. नेक्स्ट इज इम्पल्सिव एटीट्यूड. आई एक्सप्लेन यू अबाउट इम्पल्सिव एटीट्यूड कि क्या होता है इम्पल्सिविटी. बिना सोचे कुछ भी कर जाना, या पेशेंस नहीं दिखाना कोई भी चीजों में, और उसमें से बहुत बार वो इंसान जब बड़ा होता है तो वो इम्पल्सिविटी की वजह से बहुत बार ये प्रॉब्लम्स वो फेस करता है. और इम्पल्सिविटी इज मेनी टाइम्स इज अनआइडेंटिफाइड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ADHD which needs to be worked on regular basis when we are working on it. नेक्स्ट इज ओवर टॉकेटिव एटीट्यूड. बच्चा कुछ इंसान आपने देखा होगा, जब वो आप सोशल फंक्शंस में रहते हैं, इतना बोलते हैं, और वो इतना बोलते रहते हैं, लेकिन
वो जो बोलते हैं उसमें से ना तो उनको कुछ फायदा होता है ना तो कुछ फंक्शन होता है, लेकिन उनको वो बोलना ही रहता है। ये डिफाइन करता है कि उनको उनका ही पॉइंट इमेच्योर्ड डोमिनेंस वो दिखाते हैं, या कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनको पता नहीं होता है कि कितना कम्युनिकेट करना है, या बहुत ज्यादा बोलने के वजह से भी उनमें कुछ जो चीजें उनकी होनी चाहिए थी वो नहीं होती है, एंड देन दे बिकम अनसक्सेसफुल इन द लॉन्ग रन। सो दैट्स अ ओवर टॉकेटिव एटीट्यूड। ये सारी चीजें हैं, मैं ये डेफिनेटली मानता हूं कि आप सबको पता है, आप सबने ये ऐसे लोगों को देखा भी होगा, लेकिन जानना ये आप लोगों को ये जानना है कि वो लोग यहाँ तक क्यों पहुंचे, क्योंकि बचपन में वो जो चीजें रिजॉल्व होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। नेक्स्ट इज ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी ये एक साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजी है, साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है कि पर्सन अपने को जो है उससे कहीं ज्यादा बड़ा मानता है कि मैं कोई तो बहुत बड़ा हूं। तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा रास्ते के बीच में से चलेंगे, या कुछ लोग गाड़ी को सामने आके एकदम सामने से रोकेंगे, दे शो दैट आई एम मोर पावरफुल, यू नो, that is grandiosity. Or few people have a tendency to criticize people, that is also grandiosity. लेकिन grandiosity ये एक psychiatric terminology है जो बहुत ही ज्यादा दिखाई देती है। if the person is showing grandiosity, then he feels I am only the greatest person in the world, बाकी सब कुछ भी नहीं है और लोगों ने सिर्फ मेरा ही सुनना चाहिए। ये unresolved ADHD में देखा जाता है if the child is having a good intelligence factor. Okay. Then comes low self-esteem. पर्सन बहुत सारे चैलेंजेस ना रिजॉल्व करने के वजह से, या बहुत सारे फेलियर्स आने के वजह से, या फेलियर्स क्यों आ रहे हैं, मैंने बोला मेमोरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंसेस में से इंफॉर्मेशन देती है कि अगले टाइम आपको बिहेव कैसे करना है, वो मेमोरी का काम है। लेकिन जब बच्चे के मेमोरी को ठीक से डेवलप नहीं किया जाता, तब वो इंसान अपने फेलियर्स में से सीखता नहीं है, उसको बहुत ज्यादा फेलियर्स अनड्यू आ जाते हैं, एंड देन द पर्सन बिकम्स लो सेल्फ एस्टीम। उसको बच्चे ने खेलने के लिए नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, ये वो आके पेरेंट को बोलता है कि मुझे बच्चे खेलने के लिए मिलते हैं, मुझे टीचर ने नहीं दिया, लेकिन वो ये नहीं बोल पाता है कि मैं बातें कर रहा था इसलिए टीचर ने मुझे वो ग्रुप गेम में नहीं लिया, मैंने वो कैच छोड़ दिया, मैंने 3 बार वो कैच छोड़ दिया, इसीलिए मुझे अतुल ने अपने टीम में नहीं लिया। ये वो बोल नहीं पाता है क्योंकि वो अपने खुद के एक्सपीरियंसेस में से खुद को इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाता है, और उसके वजह से ये डेवलपमेंट होती है लो सेल्फ एस्टीम। You know, आपने देखा होगा कुछ few people are very intelligent but they still feel that they are timid, they are these things, and yet they are showing the other features also. They show the some features of ADHD in their childhood. Then comes emotionally imbalance. Few people थोड़ा सा अगर कुछ गलत होता है, उनके इस अनुसार नहीं होता है, और उनमें अगर impulsivity characteristic unresolved हो, तो emotional imbalance is a very डिफिकल्ट सिचुएशन वो लोग भी फेस करेंगे, और उनके सराउंडिंग के लोग हैं ये भी फेस करना शुरू करते हैं। दिस पीपल बिकम एग्रेसिव, दिस पीपल become very emotional, they start crying in between, they stop working, they stop going to work। एक छोटा सा फेलियर आता है और वो लोग अपना काम छोड़ देते हैं, तो that is called the emotional imbalance, because they have not learned how to face the challenges, you know। क्यों वो उन्होंने नहीं सीखा है, क्योंकि whenever I was supposed to learn from my own experiences, at that time my parent was sitting beside me and he was doing my homework and he was helping me to do the things, and he was nicely feeding me at the age of 8 years also. And now at the 25 years the child has not developed the important higher functions in the early childhood, and now he doesn't know how to express his emotions, and how to behave in the society, and how to tackle its own challenges, क्योंकि उसको कभी किसी ने challenges दिए ही नहीं। पेरेंट को ऐसे लगा था कि उसको में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा मैं उसको असिस्ट करता हूँ, बट believe me parents, you people are not working on ADHD because of he's not writing, he's not attending in the classroom and all. You are preparing your child for you're working on ADHD, you're taking therapies because you want to tackle this particular situations in the long run.
सो ये ना होना चाहिए, इसीलिए एडीएचडी पर काम कीजिए, ना कि वो अभी एक जगह पर बैठा नहीं है, वो घूमता रहता है उसके 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 बिना. Next is aggressive behaviors. I told you that the child will show aggressions. Most of the time, the violences at home happens. The son is hitting father, the husband is hitting wife. The things are the instability in the house because of one person is mainly because unresolved developmental issues in the early stages of development in that particular person. And उसके वजह से किसी एक को नहीं सहना पड़ता है, लेकिन शायद सोसाइटी को भी सहन करना पड़ता है. नेक्स्ट इज अर्ली स्कूल ड्रॉप आउट, दैट आई डोंट हैव टू से. इमैच्योर डोमिनेटिंग बिहेवियर. इमैच्योर डोमिनेटिंग है लेकिन इमैच्योर है. मैं ही बैटिंग करूंगा, मैं जाके पहले प्रेजेंटेशन दूंगा, लेकिन इमैच्योर है. यू डोंट नो हाउ टू डू इट, लेकिन मुझे ही करना है, मैं जाके पहले ये टेबल बनाना है, मैं पहले जाके खिला दूंगा, लेकिन वो खिला टूट जाता है, वो स्क्रू टूट जाता है. तो वो ये जो बच्चे होते हैं, ये इनका जो डेवलपमेंट होता है, ये बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी चीजों से वो लर्न कर, बिना किसी चीज कंप्लीटली मास्टरी करने के बिना वो जाके वो चीज को खुद में इंप्लीमेंट करते हैं, और फिर फेल्योर आता है, और फिर फेल्योर आने की वजह से पॉइंट नंबर 1 पेसिमिस्टिक पर्सनालिटी बनते हैं, पॉइंट नंबर 5 लो सेल्फ एस्टीम बनते हैं. ये एक साइकिल होता है. ओके, लेकिन ये साइकिल क्यों होता है? बिकॉज hyperactivity is still there, impulsivity is still there, which is not resolved, and people show these personality traits. Next is person with multiple thoughts and ideas. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनमें बहुत सारी आइडियाज होती है, बहुत सारी, लेकिन वो खुद उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, वो खुद इंप्लीमेंट करना नहीं चाहते. लेकिन in terms of unresolved ADHD, the child will say कि I will do this, I will do that. Parent also feel much better कि अरे मेरा बेटा ये चाहता है, लेकिन एक्चुअली जब हम उसको वो क्लास में डालते हैं, वो चीजें में डालते हैं, वो दूसरे दिन ही वो घर पे वापस आता है, बोलता है मैं नहीं करूंगा. This you must have seen in the children with 12 years, 14 years. ये बच्चे बहुत जल्दी give up कर देते हैं. It is because they have many thoughts, because their intelligence is creating many thoughts, but unfortunately their abilities are not developed with respect to their intelligence, and they falter in that particular activities, and then they become, again the cycle begins with a pessimistic personality. Next is affected decision making and problem solving. These people, a small decision making they can't take, or they can't tackle basic problems, and basic problems also they feel that it's a very big problem, and then they create a hype of those problems. It's a characteristic feature of unresolved impulsivity, and definitely ADHD also. Very important. This is not a child's problem. This is the society has put the things in the child's mind, that comparing self with others. जब बच्चा छोटा होता है, वो कुछ चीजें नहीं करता है, जिसकी वजह से एकेडमिक्स में पीछे पड़ता है, और जब वो 15 से 16 साल का होता है, तब वो बोलता है कि वो मेरा भैया कैसे कॉलेज में जाता है, अभी मुझे भी कॉलेज जाना है, क्योंकि वो कॉलेज जाकर वो मूवीज देखता है, वो बाहर जाके दूसरे दोस्तों के साथ खेलता है. तब ये जो 10 साल का होता है, 12 साल का होता है, वो बोलता है मैं भी भैया के जैसे करूंगा, लेकिन एबिलिटी तो डेवलप नहीं हुई है उसमें, और फिर वो कंपेयर करना शुरू करता है, और वो लोगों को जो भी फैसिलिटीज मिलती है वो खुद भी मांगता है, बिना ये सोचे कि क्या मैं वो मेरे लिए डिजर्विंग फैक्टर्स या डिजर्विंग चीजें हैं या नहीं है. Alright, so that is comparing self with others. So these are all the personality traits we do see, we may see if the ADHD things are unresolved in the early childhood development. So what steps, कौन सी steps आपने लेनी चाहिए जब आप या कौन सी स्टेप्स हमने लेनी चाहिए कि ADHD एक पर्सनालिटी में, एक डिफिकल्ट पर्सनालिटी में कन्वर्ट ना होना चाहिए? तो उसमें सबसे पहला चीज है, गिव मी अ मोमेंट, लेट्स टेक अ पॉज.
Sorry for the inconvenience, but please accept my apology. So क्या स्टेप्स लेनी चाहिए जब हम लोग ADHD को पर्सनालिटी में कन्वर्ट ना होना चाहिए? इसके लिए सबसे पहली चीज है ये ध्यान में रखना कि अर्ली इंटरवेंशन बिफोर द चाइल्ड, बच्चे के हायर फंक्शंस डेवलपमेंट होने का टाइम होता है 0 से 7 साल। 7 साल में कंप्लीट पर्सनालिटी के जो भी रॉ मटेरियल है वो डेवलप होते हैं। ये जो रॉ मटेरियल्स है ये 7 साल से 12 साल तक 7 साल के 12 साल तक अचीव होते हैं, या बच्चा जनरलाइज करता है अपने ओरिएंटेशन को, अपने थॉट्स को, अपने इमेजिनेशंस को। ये जनरलाइज करने का टाइम है 7 से 12 साल, और उसके बाद 12 से 15 साल वो बच्चा मास्टरी करता है वो हायर फंक्शंस पे, एंड देन द चाइल्ड बिकम्स अ पर्सनालिटी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वर्क ऑन ADHD before it becomes the affected higher functions. That's the best time. What is the best time? 2 years, 3 years, 4 years, 5 years is the best time. क्या होगा अगर आप 8 साल के ADHD बच्चे को थेरेपिस्ट के पास लेकर आएंगे तो उसमें वो बच्चे के हायर फंक्शंस ऑलरेडी डेवलप्ड है, ऑलरेडी they are gone into the ADHD, the distorted thought process, distorted emotions have developed, so we have to work on them also in the later on stages. So जो एक 6 महीने का प्रोटोकॉल है that may become for 2 to 3 years. Then next is understand ADHD as a developmental disorder and not as an academic dysfunction. बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अभी वो अपनी कॉपियां पूरी करता आता है, अभी उसका क्लास वर्क भी कंप्लीट होता है, अभी उसका होमवर्क भी कंप्लीट होता है, अभी वो ठीक हो गया। लेकिन ठीक होना मीन्स सिटिंग टॉलरेंस डेवलप करना, सिलेक्टिव अटेंशन डेवलप करना बिल्कुल भी नहीं है ADHD में। क्या ADHD में डेवलप होना क्या है? क्या वो अपने जो भी एबिलिटीज डेवलप हुई है वो क्या सोसाइटी में उसको जाके फॉलो करता है? क्या वो एबिलिटीज को या हायर फंक्शंस को प्रॉपरली सोसाइटी में जनरलाइज करता है या नहीं करता है? ये देखना बहुत जरूरी है, rather than following him as per our expectations. The next is identify the elements of ADHD in higher function even after the treatment stops. Yes, कुछ बच्चों के लिए मैं जब when I give the discharge, I ask the parents to come after 6 months, come after 2 months, come after 1 year, and then let's do that VSMS, or let's understand his social quotient, to whether his social quotient, like ability to sustain in a society, ability to behave in a society, or developed abilities so that I can get integrated into the society, जिसको हम लोग social quotient कहते हैं, वो लगातार चेक करना जरूरी है। डेवलपमेंट ऐसे नहीं है कि वो एक ही लाइन में जाती है। डेवलपमेंट हैपेंस इन मल्टीपल कंपोनेंट्स, मल्टीपल क्वाड्रेंट्स एंड मल्टीपल डायरेक्शंस में डेवलपमेंट होती रहती है। तो वी नीड टू चेक वेदर द ADHD is whatever the abilities you have developed once upon a time, are they getting generalized in terms of the present challenges or present age appropriate development or no. Next is identify the elements of ADHD, after treatment stop, and last is check the social development on regular basis. That's what I said in the previous point. उसकी social development अपने age के हिसाब से, जब वो puberty में जाता है तब वो कैसे behave करता है, जब वो toddler है तब वो कैसे behave करता था, अभी वो college में जा रहा है तब वो कैसे behave करता है। एक छोटा सा understanding होना जरूरी है, क्यों? ताकि ये देखना हमें होता है कि whether the child is developing appropriately personality or no. So यहाँ पर SQ and EQ is more important than IQ. बच्चा कितना होशियार है उससे ADHD का कुछ भी मायने नहीं रखता है, लेकिन मायने ये रखता है कि वो बच्चे का इमोशनल क्वोशिएंट कितना अच्छे से डेवलप हो रहा है या उसका सोशल क्वोशिएंट कितना अच्छे से डेवलप हो रहा है, ताकि वो एक अप्रोप्रिएट पर्सनालिटी बाद में जाके दिखाए। So remember the red flag, ये मैं आपको एक चीज, just one message I would like to give, that ADHD is a developmental disorder that is not, if not treated properly, then it may bring irreversible consequences in the personality. So this is all about today's lecture. Thank you. If you have any queries, you can post it in the chat box, and my representative will bring it back to me.
So I think there were few questions. If there are any, Anagha, you can share it, and then we can take few questions over here because we are running out of time. Thank you. I'll just stop sharing. Thank you. Yes, sir. Can Yeah. we start with the questions? Yes. So first question was, is medication important for managing ADHD? That's a very nice question. ADHD में मेडिसिन की जरूरत तभी है जब बच्चे का एग्रेसिव बिहेवियर, बच्चा एंटी सोशल बन रहा है, बच्चा दूसरे को मार रहा है, एक डिफिकल्ट आ रही है लोगों को उसके साथ एडजस्ट करने के लिए। या दूसरा चीज, अगर बच्चा बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस है, कहीं पर भी चढ़ रहा है, इज हाइपर एक्टिविटी सो मच दैट ही मे गेट हर्ट because of his trait or because of his the sensory needs की वजह से अगर वो हर्ट होता है, हो रहा है, then the medications are required for the short span only, where the therapist can come and then work on in that phase, because there are only two types of medicines for the ADHD, either the sedatives जो पूरे ब्रेन को एक साथ सुलाएगा, या तो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स जो बच्चे के सिलेक्टिव अटेंशन लेकर आएगा थोड़ी देर के लिए, बट दे आर ड्रग्स, दे आर द न्यूरोट्रॉपिक ड्रग्स, दे हैव अ हाई डिपेंडेंसी टेंडेंसी। सो शॉर्ट स्पैन में आप कितना विगरसली वो बच्चे के लर्निंग पर, उसकी सेंसरी लर्निंग पर या हायर फंक्शन डेवलपमेंट पर काम करते हो, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेडिसिन, अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, स्कूल में वो कॉपी नहीं कंप्लीट कर रहा है, वो बात नहीं कर रहा है, उसके लिए अगर आप मेडिसिन दे रहे हो, दैट्स आई फील एज एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, इन अ लॉन्ग रन वी आर रुइनिंग हिज ओवरऑल न्यूरोलॉजी, बिकॉज दिस मेडिसिन्स हैव अ विथड्रॉल सिम्पटम्स। थैंक यू। Next question, a few questions are there, but there are some, I'll read it out. Yes. Probable solutions, and can we go ahead, or can we look forward for the career in ADHD kids? Definitely career, हम हर एक, I have seen more than 2000 ADHD in my career last 14 years, and believe me, only let us say 15 to 20% have shown a very deteriorated condition because of environmental things, but remaining 80 और वो जो 85% में से जो भी 60-65% जो बच्चे हैं, they are leading to a very successful life, and remaining 15-20 people are having some challenges with respect to their personality. So yes, we can seek a good career in our ADHD child, but you should think about it when your child is actually ready for it. आपका बच्चा 4 साल का है और आप उसको बनाना चाहते हैं इंजीनियर या डॉक्टर, या उसको ग्रेजुएशन के बारे में सोच रहे हैं, then you are thinking about something else. Right now, if your child is 4 years, 5 years, 7 years, 8 years, you should think whether he is appropriately developing his social development, his cognitive development, his we can say emotional development, his communication, his higher functions are developing with respect to that age or no. अगर ये सारी चीजें आप करते हो तो आपको अपने बच्चे की करियर के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेगा। Because I feel rather than talking it from outside, let him decide from inside, and when he can decide from inside, only when he is capable of taking appropriate decisions and problems solving with respect to his higher functions, right? So we should give more importance to developing higher functions. Thank you. Thank you, sir. There are more queries which are very personal. So Yes. I feel host has already posted a number, helpline number. Yeah. So there you can definitely contact. I'll just wait for 1 minute if any other query is coming up. Yes, we can take one more query and then we can stop the session. Sure, first. There is one question was, my child is 17 years and what to start? Yes, we should assess the child.
यहाँ पर बहुत ज्यादा मायने रखता है कि वो चाइल्ड का इनर ड्राइव, और इनर ड्राइव अगर अच्छा है, पेरेंट्स की अगर अथॉरिटी वो बच्चे पर अभी भी है, there are much better chances that we can work on it, you know. But if the child is set a dominance on the parent, child is having all those personality traits and parents are not able to resolve it, then it's difficult difficult to work. Not for the therapist. Therapist will only expect you just bring the child on a regular basis. The therapist will definitely work on your child. But यहाँ पर एक चैलेंज होता है कि वो चाइल्ड को रेगुलरली लाना डिफिकल्ट होता है. But if you can bring him, definitely we can bring lots of reversible things in the child development. Anxiety attacks, are they part of ADHD? Absolutely, they are the parts of ADHD. They are the parts of unresolved impulsivity. My child is very impatient and does not wait for his turn. Yes, that is a type of impulsivity. So we need to work on that. It's a very, very important. We need to work on ourselves also. And most of the time when we are dealing with ADHD, we need to, and as a therapist, I have to work on the parenting also. क्योंकि जो ट्रेन में बच्चा बैठा है, जो डेवलपमेंट से डिरेल हो चुकी है, वो बच्चे को संभालते संभालते पेरेंट भी उसी ट्रेन के पिछले वाले डब्बे में बैठा होता है और उसको पीछे से बोलता है ठीक से ठीक हो जा, ठीक हो जा. So sometimes we have to work on the parent. You have to get down from that train. You come back to the normal stage of parenting. Then only your child will start following you. So most of the time ADHD के ट्रीटमेंट में ये मायने रखता है कि how the parenting can become a role model for the child and how child starts learning from the parent. थेरेपी का ये एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि बच्चे को ट्रेन करने की कोशिश ना करके बच्चे में इतनी एबिलिटी डेवलप हो जाए कि बच्चा अपने आप से एनवायरनमेंट से सीखना शुरू करे इन एन अप्रोप्रिएट मैनर. और अगर ये करते हैं then that is right therapy, that is appropriate therapy, rather than making the child to do puzzles every day and doing certain things every day and mastering the child into the skating and swimming and all those things. I am still not getting that question that does swimming reduces hyperactivity. This is a very common question I regularly get in the ADHD things. Believe me, ADHD is ये अगले आने वाले सेशंस में होने ही वाला है सेंसरी इंटीग्रेशन में. तो ये सवाल मैं उसके लिए रखता हूँ कि स्विमिंग कितना काम करता है या फुटबॉल कितना काम करता है या रोज के वो बच्चे अलग अलग एक्टिविटी में कितना काम करता है. ये हम लोग बॉडी अवेयरनेस के लेक्चर में डेफिनेटली बात करेंगे कि वो कितना सही है और वो कितना सही नहीं है. थैंक यू. So I feel we should stop this session over here. Thanks a lot, Sneak. I congratulate Sneak and all the authorities and all the parents. ये एक बहुत ही अच्छा मोटिव है कि कुछ sensible parents have come together and they have seen many parents are facing the problems with respect to the information, with respect to the knowledge, with respect to the treatments, and with respect to the emotions of the parent also. There are many parents are facing with lots of emotional deficits because they are seeing the child is suffering. So parents are suffering from the stress and all, and that stress is happening because my child is not developing properly. And for that, the Mrs. Harshali and I really congratulate Mrs. Harshali, Dr. Selukar, Mr. Wagh, Mr. Dongre. I know this committee well, and they are very sensible people who wants to bring a big change in the society with respect to, by taking the parents, by holding the parents each other and helping the parents wherever they are facing the challenges. I feel it's a nice selfless motive के साथ ये एक टीम आगे जा रही है, and all my best wishes to them. Wherever you require help or wherever you require the guidance, definitely team CRC is going to be with you. Thanks a lot for this lecture. Thanks a lot for giving this opportunity. For your support also. I mean, this is the biggest support we have got from CRC. I mean, for our venture, you are supporting us very nicely. Hopefully, we'll do it in next. We'll cover most of the things in next. Yes. I think this is the Snake Rehab Foundation website. You all can visit this, and
सी एक थेरेपिस्ट जब बात करता है तब वो एक थेरेपिस्ट एक अदर साइड ऑफ द कोर्ट होता है, बट when the parent speaks, definitely parents can follow better. यहाँ पर I know Greek authorities since long, so I feel you people are doing an amazing job. All the best wishes, and congratulations that you somewhere you started this, and this is the team of Snake. Mr. Akshay Limbana is a very dynamic person and very helpful person in this team. So all the best to you. I feel I should give it back to the Mr. Sachin Palsokar is also the director at Snake, and he's a very helpful person for the parents. You can approach them, and then I feel Nagpur may be the first city which will bring the best quality development in the special children's field with respect to creating an appropriate environment or creating an appropriate infrastructure for the parents and for the children. Thank you. These are the upcoming webinars. I feel rather than me speaking, madam can speak. Yeah, our upcoming webinars, like tomorrow we are having understanding on special education by Mukta Jatkar, and we have circulated, like we have some in music therapy, and we have some parent journey with us, that's Akshay, who achieved very nicely. I mean, he is into government job, and with CRC, we are doing many seminars like for autism and ADHD. I think we have shared information in group. So see you all there on the respective days. Thanks a lot, Snake. Thanks a lot, CRC. Thank you, host, for bearing me, and thanks, parents. Good night. Host can stop the session.